channel. This is Shruti Hare. In this video, we will be discussing about the detailed information of the sources of information of modern history. So, let us start this lecture. Let us discuss about the British documents. There were many documents that were published under the British rule. Some of them are Morley Minto reforms in 1909. It was the set of reforms made for the Indians by the British in India to appease them, but these reforms did not pay any heed on the problems of the Indians, so it was failed. तो Morley Minto reforms जो था वो एक तरह के रिफॉर्म्स थे, सुधार थे जो कि इंडियंस के लिए करना चाहते थे ब्रिटिश, लेकिन ऐसा नहीं हुआ. इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1909. नेक्स्ट, रिपोर्ट्स ऑफ साइमन कमीशन. साइमन कमीशन इंडियंस की एक्सप्लॉयटेशन खत्म करने के लिए ये साइमन कमीशन भेजा गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा इन 1927, लेकिन इस साइमन कमीशन ने कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, इसलिए सभी इंडियंस ने इसका विरोध किया. तो ये सब रिपोर्ट्स जो थी वो एक सोर्सेज ऑफ एक बहुत ही अच्छा सोर्स है इंफॉर्मेशन का, जो कि हम आज भी बहुत सारी लाइब्रेरीज में और इनके बहुत सारी बुक्स जो हैं इनके बारे में हमारे सामने है, जिससे हम इनकी पूरी तरह से इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. इस ऐसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट्स आए थे, एक तो 1919 में आया और एक 1935 में आया. तो ये गवर्नमेंट बहुत सारे एक्ट्स और बिल्स जो है ब्रिटिश रूल के दौरान पास किए गए. ये बहुत ही अच्छे सोर्सेज हैं इंफॉर्मेशन के. मैनी बुक्स आर अवेलेबल इन डिजिटल लाइब्रेरीज एज वेल एज मैनी लाइब्रेरीज to collect the information about these all documents. So British documents was a very important source of information of the modern period. Moving on to the next source of information are books. There were many books that were printed and published during that period. These books are now also preserved in public and private libraries. बहुत सारी ऐसी libraries हैं जो कि अभी भी ये सब बुक्स अवेलेबल कराती हैं अगर आप चाहें तो, और बहुत सारी ऐसी डिजिटल लाइब्रेरीज भी आजकल बन गई हैं जो कि ऑन कंप्यूटर्स ये बुक्स अवेलेबल करवा सकते हैं. तो ये बहुत सारी ऐसी बुक्स थी जो कि उस समय इंडियंस की जो कंडीशंस थी, सिचुएशंस थी उस टाइम की, वो हम सबको बताती है. दीज बुक्स ऑल्सो टेल अस अबाउट द ब्रिटिश रूल, administrative decisions by the British and the conditions of Indian at that time. Some of the books are Anand Math, written by Bankim Chandra Chattopadhyay; My Experiments with Truth, written by Mr. Mahatma Gandhi; next, Unhappy Indian by Lala Lajpat Rai; Bharat Ek Khoj by Jawaharlal Nehru. These are some books that give us an insight of the condition of the people during the modern period of Indian history. Our third source of information is letters, writings, speeches, etc. These letters, writing or speeches given by the different people during the British rule also give us an insight or the condition of the Indians during that period and their patriotic feelings towards the national freedom struggle to give independence of India. तो लेटर्स, राइटिंग, स्पीचेस जो थी, बहुत सारी ऐसे सोर्सेज हैं हमारे पास जिससे कि हमें इन सब के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है. फॉर एग्जांपल, गांधी स्मृति म्यूजियम इन दिल्ली, न्यू दिल्ली. You can get there a lot of information about Gandhiji and their works for the independence of India. For example, in this museum you can get around 6,000 books related to Gandhiji and around 60,000 books related to Gandhiji and around 6,000 original photographs of Gandhiji during the freedom struggle. That means this museum has a lot of information about the modern period. अब अगली बार अगर आप कभी न्यू दिल्ली विजिट करते हैं तो गांधी स्मृति म्यूजियम जाना ना भूलें. Next, freedom. There were some slogans also that awoke the national patriotic feelings of the Indians. Some of them are, "Freedom is my birthright and I shall have it." This slogan was given by Bal Gangadhar Tilak to awake the Indians for the national struggle of India. Next,
do or die. This slogan was given by Mahatma Gandhi during the Quit India movement in 1942. You give me blood and I will give you freedom. This slogan was given by Subhash Chandra Bose. उनका ये मानना था कि अगर आप फ्रीडम स्ट्रगल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो आपको अपने शायद प्राण भी न्यौछावर करने पड़ सकते हैं। तो दीज वर सम इम्पॉर्टेंट स्लोगन्स। और भी बहुत सारे ऐसे नेशनल फ्रीडम स्ट्रगलर्स थे जिन्होंने अलग अलग स्लोगन्स दिए और उन्होंने अपने देश के नागरिकों को, अपने इंडियंस को इस चीज के लिए जागरूक किया कि हमें किसी भी तरह से ब्रिटिश रूल को खत्म करना है और अपने देश को आजादी दिलानी है। तो दीज लेटर्स, राइटिंग एंड स्पीचेस वर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द मॉडर्न। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन इज न्यूज़पेपर्स. There were many newspapers that were published during the modern period. These newspapers tell us about the administration during the British rule and the government decisions taken by the Britishers against Indians or in favor of Indians. जो भी जितने भी decisions Britishers के द्वारा लिए जाते थे वो सभी इन न्यूज़पेपर्स के द्वारा इंडियंस तक पहुंच जाते थे। बहुत सारे ऐसे इंडियंस भी थे जिन्होंने अलग अलग वर्नाकुलर न्यूज़पेपर्स, वेरियस न्यूज़पेपर्स जो है पब्लिश किए। उनमें से कुछ न्यूज़पेपर्स के नाम यहाँ लिखे हैं: द लंडन टाइम्स, द बॉम्बे टाइम्स, केसरी, अमृत बाजार पत्रिका, भारत मिहिर, etc. These were some important newspapers that were published during that period. But in 1878, the British government passed a Vernacular Press Act. वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि जितने भी न्यूज़पेपर्स ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी लिखते थे उन सभी को तुरंत प्रभाव से बैन कर दिया गया था। दे बैन्ड ऑल द न्यूज़पेपर्स टू सप्रेस द एंटी ब्रिटिश राइटिंग्स। तो ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट था ये इंडियन हिस्ट्री में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट था। इसके बाद इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का बहुत सारे इंडियंस ने रिवोल्ट भी किया, विरोध भी किया, लेकिन फिर भी ब्रिटिशर्स ने इस एक्ट को वापस नहीं लिया। इस वर्नाकुलर प्रेस एक्ट के द्वारा हमारी जो राइट टू एक्सप्रेशन जो राइट था उसका हनन हो रहा था, हमसे छीना जा रहा था, इसलिए इस प्रेस एक्ट का सभी ने विरोध किया। तो ये जो न्यूज़पेपर्स थे, न्यूज़पेपर्स वर अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन for Indians about the modern period, and now presently these newspapers are preserved in many libraries, big libraries over India and in Britain also. Next source of information is administrative reports of the government. There were many administrative decisions taken by the British during the modern period or their rule, which help us to take the information about the modern period in India. तो ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स थी, अलग अलग चीज़ों के ऊपर उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस लिए थे, लाइक रिपोर्ट्स ऑन ट्राइब, कास्ट एक्सेट्रा। ये जो ट्राइब्स होते हैं, दीज आर द पीपल हु लिव इन फॉरेस्ट एंड डिफरेंट कास्ट आर वर देयर इन इंडिया ऑल्सो। तो ये सब जो है ट्राइब्स और कास्ट पर बहुत सारे ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए थे ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल, जो कि इंडियंस की कंडीशन को और ज़्यादा खराब करते जा रहे थे। तो ये जो रिपोर्ट्स हैं वो आज भी बहुत सारी लाइब्रेरीज में प्रिजर्व हैं। ये इन रिपोर्ट से हम बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। Next, surveys were conducted by the British government. Many surveys were also conducted by the British government, and a survey was conducted in Champaran, that was in Bihar. आज भी बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण नाम का। यहाँ पर बहुत सारे इंडिगो फार्मर्स ने अपने एक्सप्लॉयटेशन को रोकने के लिए एक रिवोल्ट किया था, जो कि जिसकी की रिपोर्ट जो है वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के पास तैयार की गई थी। तो ये जो सर्वेस थे इसके बारे में भी हम आसानी से लाइब्रेरी से इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वर दे ऑल्सो इंट्रोड्यूस लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स। लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स वर द सेटलमेंट्स दैट इंट्रोड्यूस द टैक्सेस ऑन देयर प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स। तो ये प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स जो भी होता था उस पर कुछ एक % जो है
जो लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, देयर वर मेनी लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स. वी विल डिस्कस दीज लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स इन द नेक्स्ट चैप्टर्स ऑफ द इंडियन हिस्ट्री, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री. और ये लैंड रेवेन्यू सेटलमेंट्स जो थी वो इंडियन एक्सप्लॉयटेशन को वो और भी ज़्यादा बढ़ा रही थी. तो ये सब जो थी एडमिनिस्ट्रेटिव रिपोर्ट्स, वो आज भी हम इन रिपोर्ट्स के द्वारा इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं इंडियन हिस्ट्री की, मॉडर्न पीरियड की, जो कि एक इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है. तो ये जो सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं वो आसानी से आप किसी भी पब्लिक या प्राइवेट लाइब्रेरी से प्राप्त कर सकते हैं. एंड यू कैन गेट द इंसाइट of the condition of the people during that period. Next source of information are internet and or databases. इंटरनेट और डाटाबेसेस, आपको पता है कि आजकल डिजिटल टेक्निकली बहुत ही मॉडर्न ज़माना है. तो ये जो सारे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं वो बुक्स के अलावा इंटरनेट पे भी हम आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. तो इंटरनेट के द्वारा बहुत सारी ऐसी लाइब्रेरीज हैं जो हमें इंफॉर्मेशन देती हैं. दीज आर सम लाइब्रेरीज: डिजिटल साउथ एशिया लाइब्रेरी, ब्रिटिश लाइब्रेरीज ओरिएंटल एंड इंडियन ऑफिस, यानी ब्रिटिश लाइब्रेरी का जो इंडिया में ऑफिस है और ब्रिटेन में ऑफिस है, वहाँ पर दोनों ही जगह हम इस मॉडर्न पीरियड के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं. इसके अलावा सेंट्रल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया ऑल्सो गिव अस एन इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. इन सभी लाइब्रेरीज से आजकल डिजिटली आप कनेक्ट हो सकते हैं और इन डिजिटली कनेक्टेड लाइब्रेरी से आप बहुत ही आसानी से, वेरी इजीली, यू कैन कलेक्ट द इंफॉर्मेशन अबाउट द मॉडर्न पीरियड ऑफ इंडियन हिस्ट्री. तो ये जो सारी सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन है, बहुत सारी ऐसी इंफॉर्मेशन देती हैं जो कि हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और हमें जाननी भी चाहिए. Our last source of information is old buildings, artifacts and people of that period. There were many buildings that were built by the British during the modern period for the development of India during their rule. Some of the buildings are India Gate, Rashtrapati Bhavan, Victoria Terminus in Bombay. इसके अलावा Fort St. Collins in Madras. These are some important buildings that were built by the British to excel their rule in India. Artifacts were the things preserved in museums. तो पहले भी हमने पढ़ा कि गांधी स्मृति म्यूजियम जो है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स है इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का. यू कैन कलेक्ट इंफॉर्मेशन through these various museums in India established by the Indians as well as the British. National Museum is one of the museum that is situated in New Delhi. You can collect the information from that museum also. Next, old people also share their experiences about the modern period. बहुत सारे पुराने लोग ऐसे हैं जो कि किसी ना किसी रूप में इंडियन नेशनल मूवमेंट से जुड़े हुए हैं, फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़े हुए हैं. वो आज भी अपने बच्चों से, अपने घर वालों से ऐसे अपने एक्सपीरियंसेस जो हैं वो शेयर करते हैं कि उस समय ब्रिटिश रूल के दौरान लोगों की कंडीशन कैसी थी, कैसे वो अपने एक्सप्लॉयटेशन से लड़ रहे थे और किस तरह से इंडियंस ने नेशनल मूवमेंट, फ्रीडम स्ट्रगलर्स ने नेशनल मूवमेंट के द्वारा हमारे इंडिया को इंडिपेंडेंस दिलाई. तो ये जो सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्सेज हैं और हमारे देश में और बहुत सारे देशों में ये इंफॉर्मेशन जो है प्रिजर्व की गई है थ्रू वेरियस मेजर्स. और अगर हम चाहें तो हम इस इंफॉर्मेशन को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं. In this lesson, we have studied about the major sources of information of modern history. In the next lessons, we will be studying more events of the modern history in India. So, please watch this video and till then, bye-bye.